Should we start? All are here. Yeah. Yes. So as usual, we will start the session. 1 second, huh? Yes. Sitting with your spine erect, keeping your shoulders proper, with your chin parallel to the floor. Slowly inhale. Gently open your eyes. So very good morning to all of you. Once again, we will continue where we had stopped in the last class, the chapter 3rd, where we started with the study of the mudras. And we did the first 7 shloka. Am I right? Yes. And we were supposed to start from the 8th one, that is supposed to be. हमने उड्डयन किया, जालंधर बंद किया, yes. Yes, we will start with the Mahabandha, that is the shlok number 16. Yeah. So we will start with the 15th one, not 16th, 15th one, because we had already done up to Moola Bandha, and 15th is again Jalandhar Bandh. Yes, तो बराबर है, 16th ही से हमको स्टार्ट करना है. ओके. महाबंधः परो बंधो जरा मरण नाशनः प्रसादादस्य बंधस्य साधयेत् सर्ववांछितम्. Mahabandha is a great bandha which is preventing the decay and death. By virtue of this bandha only one gains whatever one desires. अब आप देखेंगे तो पिछले क्लास में हमने बड़े अच्छे से जो है ये 3 बंधों का हमने स्टडी किया, and these 3 bandhas were Moola Bandha, Jalandhar Bandha and Udyan Bandh, starting with Udyan Bandh of course. And the combination of all these 3 bandhas are supposed to be taken as Mahabandha.
But still, if you go to Hatha Pradipika, he specifically mentions that for Mahabandha, the left heel should be placed at the perineal region, and the right leg should be placed above the left thigh. And then we should go ahead inhaling and applying chin lock, and at the same time pulling the navel region in and letting our gaze to be fixed on the tip of the nose. We are focusing on our breaths. That is what we studied in Hatha Pradipika as the practice of Mahabandha. Here, such kind of spatial mentioning about the posture and all is not done. But at the same time, it is said, okay, this Mahabandha is a great bandha which prevents the decay and death. Decay is aging, and death is as a result of annihilation of the whole life process with relation to that particular body, and then you are getting a new body. But when he says that we will be preventing the decay and the death, that means not only you will remain healthy, but at the same time, you are gathering a great amount of time, kala or duration, I should say, which is going to help you in order to make yourself, what I should say, spiritually connected to the sadhana and completely devoid of the material aspects, which is not involving you into agami karma. So somewhere you are going through the troubles which are related to the prarabdha karma. That's all. You are not creating the new ones as such. And that is where the delay of the decay as well as the death is taking place, because multiple opportunities you are getting to go ahead and continue with your sadhana. In spite of that also, if the time period given gets completely what you can say used up, of course you will be getting another janma to carry on with that process. Now what he says, he is adding something more to us. This Mahabandha has to be practiced along with Moola Bandha, and that will only make the Mahaveda important. What he says, Rupa Lavanyam, Narinam Purusham Vina, Moola Bandha Mahabandho, Mahavedam Vina Tatha. Now again bring your memories back to Hatha Pradipika. हमने हठ प्रतिपिका में क्या पढ़ा था कि महामुद्रा और महाबंध ये दो अभ्यास करते हुए अगर हम महावेद नहीं करते हैं तो महामुद्रा और महाबंध करना बेकार है, ऐसा हमने वहां पढ़ा था। लेकिन यहां पर देखो एक चीज अलग है, उन्होंने महामुद्रा की जगह पर लिख दिया मूल बंध। नाउ यू विल से साबिर भाई ऐसे क्यों? महामुद्रा इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस एंड मूलबंध इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स महामुद्रा में भी मूलबंध लग जाता है, ये बात अलग है। बट व्हाई दिस डिफरेंस? नाउ सी, लेट मी टेल यू, एवरी योगी is sharing his experience in the literature that he is responsible for writing it or making it written by others. So that yogi is sharing his own experience in it. तो वहां पर अगर स्वात्माराम जी का एक्सपीरियंस था तो हम कहेंगे यहाँ पर घेरंड जी का एक्सपीरियंस है। फिर आप पूछेंगे साबिर भाई हमारे लिए क्या लागू होता है? तो मैं ये कहूंगा ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। महामुद्रा के साथ साथ महाबंध का भी अभ्यास कीजिए और महावेद कीजिए, और उसके साथ साथ जो है मूल बंध के साथ जो है महाबंध का अभ्यास कीजिए और फिर जो है महावेद का अभ्यास कीजिए। तो यू विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री प्रैक्टिसेस इन वन ग्रुप एंड द अदर ग्रुप, एंड यू योरसेल्फ कैन डिसाइड द बेनिफिट फॉर यू। तो आप मुझे पूछेंगे साबिर भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो मैं कहूंगा कि स्वात्माराम जी का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए ज्यादा सार्थक रुका हुआ है।
देखो ये क्वेश्चन सामने से आते हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए आई जस्ट वांट टू मेक यू पीपल गो थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग सो दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग all these combinations are there in the mind and that is going to help you out. तो वहां पे क्या था कॉम्बिनेशन, एक तो महामुद्रा प्लस महाबंध along with महावेद will help you to improve your lung capacity. It is going to help you to overcome certain weaknesses in your body, or you can say certain kind of lacking. जैसे आज भी कभी कभी ऐसे लगता है, आज आज के डेट में ना मैं खान पान के मामले में बड़ा सुधर गया हूँ, आई शुड टेल यू दिस। हमारी बेगम बोलती है, अरे यार तुम खुद नहीं खाते हो, हमको भी क्यों परेशान करते हो, तुम नहीं खाते हुए दिखते हो तो हमको ऐसे लगता है कि हमारा कैसे होगा, क्योंकि हम हमारे लिए बनाए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको हमारे साथ में कंपनी देनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मैं बैठ जाता हूँ चाहिए तो, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो somewhere this changes has come automatically, and slowly I'm becoming very strong in it. And believe me, I'm not feeling that I'm not eating one time meal, I'm eating only 2 times meal, and that too very light, and still I'm feeling good. So in that case, why should I unnecessarily add the third meal to my day? It is better to avoid it, isn't it? So this is how your practice itself will organize your system when you are into the practice, and that organization will help you to become a particular type of figure, which will make you realize which are the practices which are going to really help you out, and this self experience only leads you to the ultimate experiences. And let me tell you, आप कितने भी अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे, आपका गुरु या आपका टीचर कितना भी अच्छी तरह से आपको गाइड करता होगा, लेकिन अल्टीमेट गाइडेंस जो है वो आपका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि टीचर आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो आपको बता सकता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, बट एट द सेम टाइम उसका अपना एक्सपीरियंस है, और आपका शरीर उसके शरीर से अलग है, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट उसके इससे अलग है। तो वहां पर ये बातें जो है बहुत मायने रखती है, दैट वी शुड कीप इन द माइंड एंड डिसाइड आवर कॉम्बिनेशन एंड गो अहेड। तो हियर ही सेज, एज द ब्यूटी, youth, or charms of a woman are of no avail in the absence of man. This is just a upama given, analogy given over there. In the very similar manner, the Moola Bandha and Mahabandha is of no use or of no avail without Mahaveda. And he goes on to make us understand how to go about with it. Mahabandha Samasadhya. अब देखो, उन्होंने एक तो हमको महाबंध की टेक्निक नहीं बताई, लेकिन वो क्या बोलते हैं, महाबंध समासाध्य, हाउ टू सिट इन महाबंध। चरेद उड्डान कुंभकम महावेद समाख्यातो योगी नाम सिद्धिदायक। अब आप बोलेंगे साबिर भाई यहां पर तो उन्होंने महाबंध का हमको टेक्निक बताया ही नहीं, फिर ऐसे कैसे बोल सकते कि महाबंध में बैठकर। तो एक क्लैरिटी मन में ये ले आओ कि दिस बुक इज जस्ट ए information about the practice that you are going to do, not the complete procedure. And when it comes to complete procedure, it has to be learned under the guidance of a teacher only. That's where the importance of the guru comes in. So the guru will teach you. Now फिर आप बोलेंगे अभी इसमें तो दिया नहीं तो हम कैसे माने, तो बोलेगा हठ प्रतिपिका है ना आपके पास, हठ प्रतिपिका का मैंने वर्णन कर दिया कि हाउ यू आर सपोज टू सिट इन महाबंध। तो ना ही से महाबंध समासाध्य चरेद उड्डान कुंभकम महावेद समाख्यातो योगी नाम सिद्धिदायक। अज्यूमिंग दी महाबंध पोजीशन, ये लाइट चालू रहने दो। Assuming the Mahabandha position, perform Uddiyana during the Kumbhaka. This is known as Mahaveda, which brings success to the yogis. अब देखो, मैं आपको फिर से हठ प्रतिपिका की ओर ले चलता हूं। हठ प्रतिपिका में भी यही लिखा हुआ है कि महाबंध के जो आसन की स्थिति है उसमें पहले बैठ जाओ और महाबंध में आ जाओ। महाबंध कैसे करते हैं, आपने समझो मानो पहले आपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट हील को पेरिनियम के पास लगा दिया
और राइट लेग को फोल्ड करके आपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख दिया। ठीक है, ऐसे रखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, पूरक करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं और उडियान करते हैं। मूल बंद तो पेरिनियल प्रेस होने की वजह से ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, सो देयर इज नो एज सच एनी काइंड ऑफ इश्यू विद द मूल बंद। और आपकी नजर जो है नाक के टिप पर होती है और सांस को जो आप अंदर रोक कर रखते हैं उसके पर पूरा ध्यान आपका रहता है। नाउ दिस इज महाबंध। अब महावेद क्या है एज पर हठ प्रतिपिका, यहां पर देखो टेक्निक नहीं है, लेकिन हठ प्रतिपिका में जो हमने टेक्निक पढ़ी थी उसमें क्या था कि दोनों हथेलियां अपने बटक्स के साइड में जमीन पर रखो और हल्के से हिप को उठाओ और हिट करो जमीन पर, हल्के से ऊपर उठाओ और हिट करो। फिर आप बोलेंगे क्या चिन लॉक और एब्डोमिनल लॉक वैसे ही बना रहेगा? यस, द चिन लॉक एंड एब्डोमिनल लॉक विल बी रिमेनिंग एज इट इज, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेसिंग द फ्लोर विथ योर palms टू लिफ्ट द हिप। आप बोलेंगे कितना उठाना है? हार्डली 1 इंच, बिकॉज अगर आप 1 इंच से ज्यादा सोचते भी हैं उठाने की तो द पेरिनियल का जो हील जो प्रेसिंग कर रहा है वो छूट जाएगा। अब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन माय हैंड हियर, this portion, the heel of the hand is your buttock, okay, and now this is the heel of your left leg। अब आप क्या करते हैं, अब पूरा बंद वगैरह सब आपने लगा लिया, अब आप हिप को ऊपर उठाते हैं और हिट करते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं और हिट करते हैं। ये उठाना कैसा हुआ? आपके हाथों से। लेकिन जैसे ही आपने ये ज्यादा उठाने की कोशिश की तो क्या होगा, आपका ये जो पेरिनियल के पास जो हील जो लेफ्ट लेग का प्रेस कर रहा है वो छूट जाएगा। वो छूटना नहीं चाहिए, वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। नाउ दैट इज वेयर यू आर डूइंग दिस। फिर आप बोलेंगे लेकिन हठा प्रतिपिका में तो हमने ये पढ़ा था, ये बात तो सही है, लेकिन इसका फायदा क्या है? Why we are doing this? Why we should hit our bums on the floor? What is the reason for that? बच्चे भी हंसने लगते हैं, but at the same time the clear reason for this, when you apply tribandhas and that prana shakti is मैं अपने colloquial language के अंदर अगर कहूं तो this prana shakti is like suffocated inside the container एंड इट इज ट्राइंग टू मूव आउट, यहां से निकलो या यहां से निकलो, कहां से निकलो, उसको टेंशन आता है। तो हम बोलते हैं एक ही दरवाजा है तुमको निकलने के लिए और यहां से निकलो। वो यहां से निकलो के लिए हम हिट करते हैं, और वो हिट यहां से निकलो मतलब कहां से निकलो? सुषुम्ना से, मध्य मार्ग से। और पता चलता है कि वो मध्य मार्ग तो ओपन ही नहीं हुआ है, वहां पर कुंडली अपना मुंह लगाए उसको ब्लॉक करके बैठी हुई है। तो ऐसा करते रहने से कुंडलिनी जागृत होगी, अपने आप को साइड में करके वो स्पेस को, ब्रह्म द्वार को खोल देगी और प्राण के साथ खुद भी चल पड़ेगी। यानी द होल पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस महावेद इज टू एक्टिवेट द कुंडलिनी एंड मेक इट पास थ्रू द सुषुम्ना। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो कंसेप्चुअल बात हो रही है एनर्जी सेंटर्स की और उसके एक्टिवेशन की, और दूसरी तरफ फिजिकल एस्पेक्ट को उसके साथ में जोड़ दिया जा रहा है। तो फिजिकल और कंसेप्चुअल दोनों साथ में कैसे चलेंगे? एक तरफ फिजिकल एक्ट है और दूसरी तरफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे मान लें कि ये ऐसे होगा? तो दिस टू थिंग्स समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। Now, while doing this action also, we have to understand that maybe I am hitting my bums on the floor, but actually I'm trying to push conceptually the pranic energy along with the kundalini through the sushumna to rise up. तो वहां पर हमारा अंडरस्टैंडिंग वैसे होना चाहिए, एंड देन ओनली सच काइंड ऑफ चेंजेस मे टेक प्लेस। अब आप बोलेंगे साबिर भाई आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या? कुछ एक्सपीरियंस नहीं, हमारी कुंडलिनी कुछ अभी तक जागृत नहीं हुई। जिस दिन जागृत हो जाएगी तो शायद मैं आपके सामने बैठकर ये लेक्चर झाड़ूंगा ही नहीं, आई विल बी समवेयर एल्स। तो हाँ जी, Shabil bhai, any known personality? yes, there are many. Yes. In fact, they don't come upfront. But if you go to the Himalayan yoga tradition, स्वामी रामा का जो हिमालयन योग का जो ट्रेडिशन है, if you go Yes, to yes. their ashram, you will find all this happening over there, and there are people who are siddha yogis.
ये सिद्ध योगी का जो डेफिनेशन है आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो हठ योग का जो टेक्स्ट है, जो ज्यादा फिलोसॉफिकल है, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम है। लेकिन आप उसका छठा अध्याय पढ़ते हैं तो छठे अध्याय के अंदर सदगुरु कौन है, गुरु कौन है, अवधूत कौन है, सिद्ध योगी कौन है, वो सिद्ध बनता कैसे है, उसके आचरण क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें ना उसमें डिफाइन की गई है। और जब आप उनसे जाके रूबरू देखते हैं, उनको मिलते हैं, वो बात तो नहीं करते, लेकिन जब आप उनकी शक्ल को ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सिद्ध योगी है। एंड देयर आर पीपल बट दे विल नेवर कम अप फ्रंट टू टेल यू दैट आई एम अ सिद्ध योगी। वैसे ये बात और है कि आजकल फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको सिद्ध योगी बहुत मिल जाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि मैं सिद्ध योगी हूँ, हिमालय से सीख के आया हूँ। समझना कि बहुत बड़ा गड़बड़ है उसमें, क्योंकि द वन हु इज अ सिद्ध योगी विल नेवर क्लेम आई एम अ सिद्ध योगी। वहां पर फिर से ईगो आ गया तो जीरो हो गया हो। So that is where we have to understand a Siddha yogi will never come up front. Yes. ये मालूम कैसे हो फिर? You just go to them. See, they will not come to you. We have to go to them. Yes. और अभी अभी जो मैं आपको मेरा जब ऋषिकेश का जो विजिट था, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो एक समय था कि ऋषिकेश को हमारे योग का कैपिटल कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। लेकिन आज अगर कभी आप ऋषिकेश में जाएंगे ना तो सब अपना तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने इतना, और जैसे एक हिंदुस्तानी अगर कभी उनके क्लास में एडमिशन लेता है ना तो जैसे हमारे कास्टिसिज्म में जिस तरह से एक शूद्र को देखा जाता है ना, वैसे एक हिंदुस्तानी को देखा जाता है कि इंडियन रुपीस लेकर ये एडमिशन ले रहा है। लेकिन अगर डॉलर्स में आप पेमेंट दो तो आय है फिर क्या बात है, फिर तो दे विल ट्रीट यू लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पर पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया है और इसीलिए जो है आज ऋषिकेश वो ऋषिकेश नहीं रहा जो आज से 25-30 साल पहले था, वो ऋषिकेश अब नहीं। तो now we have to understand this also. So we need to go to those places where the pure traditional yoga is being practiced, and they will not come even in Bihar School of Yoga. Let me tell you, आज आप देखिए इतना बड़ा इंडियन योगा एसोसिएशन बन गया, YCB बन गया, ये सब बन गए, सारे बड़े बड़े योगा इंस्टीट्यूशंस इनके साथ में जुड़े हुए और उनके YCB को चलाने के लिए अपने कोर्सेस चला रहे हैं। लेकिन जो साधना प्रवृत्त इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने अपने आप को ये YCB IYA से बहुत दूर रखा हुआ है, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। उनको समझ में आती है बात कि ये सब कमर्शलाइजेशन है, ये साधना को खत्म करने वाली बात है हो रही है यहाँ पे, और उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा ही नहीं। आज आप कोई भी बड़े कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको इनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ही नहीं। पहले मिलता था लेकिन मैं आज पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंस से देख रहा हूं दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड एट ऑल बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज। तो बिहार स्कूल में भी अगर आप चले जाएंगे तो उनकी एक अपनी साधना कक्ष है और वो साधना कक्ष के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। खैर उनका तो ज्यादा तंत्र ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, इवन हिमालयन योगा इज मोर तंत्र ओरिएंटेड प्रैक्टिस, बट ऑल दिस इज तंत्र ओनली ना। हम जो हठ योग पढ़ रहे हैं वो तंत्र ही तो है। अब वो कॉमन मैन के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है ये भी हमको समझना है, because there is a very important qualification to be known in order to do such practices. If you do not qualify, please don't do it. But if you feel that yes you can go ahead and understand it, then please, because it is your self understanding. आज के डेट में nobody, no teacher is qualified to that level which will tell you कि हाँ अब तुम उसके लिए qualify हो गए, अब तुम वो practice करो। हमारे नजर में तो आज तक कोई ऐसे मिला नहीं। But at the same time, when you do the self practice, it is written in our text कि तुम्हारी साधना करते करते गुरु खुद चल के आएगा तुम्हारे पास, because your sadhana will create that kind of ambience and it will attract the right guide in front of you and that person will come to you and guide you. So you cannot see them coming to you unnecessarily, but at the same time we have to go to them and know whether these are the Siddha yogis or not. That way you can see. Okay. Next, if we come to this explanation that assuming the Mahabandha position, perform Uddiyana during Kumbhaka, this is known as Mahaveda, which brings success. अगर आप वहीं घेरंड संहिता के वो जो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है महावेद का explanation, that is in the note,
that note is not explained in the verse, but they have connected it with the Hatha Pratipika. और उन्होंने clearly लिखा हुआ है Hatha Pratipika chapter 3 25 to 27 makes us understand a more elaborate technique settled in Mahabandha after performing Puraka and restraining the breath by the Jalandhar Bandha. Balance on the two palms placed on the ground, sitting position. Softly strike on the ground with the posteriors before the breath is exhaled. यानी रेचक करने से पहले इतना कार्य कुंभक की स्थिति में रहकर करो. And there the combination is of Tadana Kriya, striking the posterior on the ground, and Bandha Traya, that means all the three bandhas. Whereas Gheranda is recommending you the practice of Mahabandha with Moola Bandha accompanied by Mahaveda. So ye, as we all are yoga teachers, we need to know this kind of distinction between Hatha Pratipika and Gheranda Samhita, which is a very important distinction, because there will be chances in future कि you will come across कि मुझे अगर कभी अभी अपने लेवल को और आगे बढ़ाना है तो मैं कौन सा करूं. तो वो बिना सोचे समझे जो है आप दोनों में से एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए, या दोनों कॉम्बिनेशन का अभ्यास, एक कॉम्बिनेशन का अभ्यास आप 1 महीना करिए और दूसरे कॉम्बिनेशन का आप अभ्यास जो है दूसरे महीने करिए, और आपको ये रियलाइज हो जाएगा. ये मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन उपयुक्त है, एंड दैट वे यू कैन गो अहेड विद दैट. ओके जी. यहाँ अभी ये जैसे आपने कहा ये सब बंध में अपन प्राण शक्ति का फ्लो को अपन चैनलाइज कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या मतलब जो बॉडी के ऊपर बड़ा सुप्रीम कंट्रोल नहीं चाहिए होगा? इसीलिए तो उन्होंने सारी बातें पहले ही बता दी है ना. बाधक तत्वों को फॉलो करो, साधक तत्वों को फॉलो करो, अपने खान पान पे कंट्रोल ले आओ. हठा प्रतिपिका तो क्लियरली कहता है ब्रह्मचर्य, मिताहार, त्याग. जब तक ये 3 चीज का पालन नहीं होगा तो योग में सिद्धि मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. क्योंकि हमारे जो प्राण का जो चैनलाइजेशन जो है, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन या फिर उसका यूटिलाइजेशन जो है, वो अगर कभी हम पारमार्थिक को छोड़कर प्रपंच वाले कार्यों के अंदर अगर हम उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, तो कहां से आपका पारमार्थिक ग्रोथ होगा? क्योंकि हम प्रपंच में इन्वॉल्व हैं, और प्रपंच में इन्वॉल्व होना कुछ गलत नहीं है. अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि ये पंचमहाभौतिक शरीर के एक्सपेक्टेशंस को भी हमको जस्टिफाई करना चाहिए. It is not that every individual should only follow the Jnana Marga and go ahead. In fact, coming to that Jnana Marga, one should have the experience of प्रपंच also. क्योंकि जब तक प्रपंच का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप जो पारमार्थिक लेवल पे जाके जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिस्टिंक्शन लाकर आप अलग कैसे होंगे? तो दैट डिस्क्रिमिनेशन इज एसेंशियल. और तैत्तिरीय उपनिषद ये क्लियरली कहता है कि आनंद मीमांसा को समझने के लिए, मतलब दैट इंक्विसिटिव स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस एट द प्रापंचिक लेवल एंड एट द पारमार्थिक लेवल, वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, देन ओनली यू विल नो द राइट ब्लिस. अदरवाइज कई बार तो ऐसे भी होता है ना कि हम आसन करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम बोलते हैं आहा हा बड़ा प्यारा लग रहा है. तो ये बात सोचो कि क्या वो पारमार्थिक है या प्रापंचिक है? वो डिफरेंस हमको जानना चाहिए. तो यू शुड एनी प्रैक्टिस, इवन शवासन, इवन सिटिंग इन पद्मासन, even sitting on your chair and closing your eyes and going through it and coming out, and you say after doing this 10 minutes of breath awareness, I am feeling very good. I am feeling, I वहां पर आया तो वो I आपकी आत्मा है या आपका शरीर है, ये दोनों के बीच में आपको तुलनात्मक जो है ना डिस्टिंक्शन करने आना चाहिए. If the distinction is there, then understand that your practice is on the right grounds. So this is where we need to understand about your question. कि हमें किस तरह से इसका अप्रोच बनाए रखना चाहिए. या एक बात तो जो भावना की हो गई, तो आपने कहा कि भावना परमार्थिक है या भौतिक है, वो तो एक चीज हो गई. सपोज परमार्थिक भावना होने के बावजूद भी अगर हमारी मतलब शारीरिक तैयारी पूरी नहीं है,
मतलब ये प्राण को चैनलाइज करना, तो मतलब इससे पहले प्राण को समझना, उसके फ्लो को स्टडी करना, तो चैनलाइजेशन उसके बाद की बात है ना। तो और इसीलिए तो दो चैनलाइजेशन है ना। एक चैनलाइजेशन जो है 72,000 नाड़ियों के साथ साथ ईड़ा और पिंगला का है। जी जी फिर जी ये चैनलाइजेशन जैसी मतलब पूरे शरीर के जितने भी चैनल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। वो क्लियर हो जाने के बाद में ईड़ा और पिंगला रुक जाती हैं। जी जहां वो रुक गई तो ऐसा समझो कि अब सुषुम्ना का कार्य शुरू हुआ। तो जब तक वो सुषुम्ना का कार्य शुरू नहीं होता तो आप वो लेवल पे गई नहीं है। करेक्ट we are engaged only at the ida and pingla level, that is sympathetic and parasympathetic कार्य चल रहा है। so we have to go beyond that aspect। तो as you are saying, जो शारीरिक और इस तरह से आपने बात की कि भाई ये प्रपंच वाली बात हो गई और ये परमार्थिक वाली बात हो गई। तो परमार्थ का एक्सपीरियंस हमको तभी होता है जब हमारा सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है, सुषुम्ना खुल जाता है। और सुषुम्ना तब तक खुलने का सवाल ही नहीं उठता जब तक ये ईड़ा और पिंगला शांत ना हो जाए। तो ईड़ा और पिंगला को शांत करने के लिए जो आज के डेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कब तक करना है? शायद ये जन्म कम पड़ जाए, अगला जन्म भी लेना पड़े। करेक्ट। So quite possibilities are there. Yeah. So तो I hope that is clear now. हाँ. in effect, so what we can say is कि in that sense ये घिरण मुनि जो हैं ये बंद की एज इंफॉर्मेशन बतौर हमें पहले बता रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हठ प्रदीपिका का फ्लो है That is आसन correct. बंदा, वो ज्यादा मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से ज्यादा करेक्ट है। Yes. वो क्यों मालूम है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हट्टा प्रतिपिका के अंदर मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, ये सब एक्सप्लेनेशन हमको 3rd चैप्टर में मिलते हैं। लेकिन 2nd चैप्टर जो प्राणायाम का है उसमें भी कहा गया कि आप ये लगाओ। तो स्टूडेंट पूछता है इसके बारे में तो कुछ क्लैरिटी दी नहीं गई और आप प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। और वही बात जो है अगर आप घिरण संहिता में देखेंगे तो उसके बारे में पहले क्लैरिटी दी गई और आगे एप्लीकेशन बताया गया। लेकिन कोई जैसे कि एक है ना, कोई भी लिटरेचर लिखने का एक लिटरेचर सेंस होता है और उसको हम कहते हैं युक्ति, उसको तंत्र युक्ति कहा जाता है। संस्कृत के अंदर अगर आप गूगल पे जाकर अगर कभी आप टाइप भी करेंगे ना तंत्र युक्ति क्या है, तो तंत्र युक्ति के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई अगर कभी वो वर्क है लिखा हुआ तो उसका टाइटल कैसे होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, उसका चैप्टराइजेशन कैसे होना चाहिए, कौन सी बात कहां बताई जानी चाहिए। ये तंत्र युक्ति का पार्ट है। और ये तंत्र युक्ति के पार्ट को हम समझे बिना हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो वो जब तंत्र युक्ति के बिना हम ये टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती और स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये तंत्र युक्ति को पहले अगर इसका अभ्यास किया, इसको अच्छी तरह से समझ लिया, तो तंत्र युक्ति के अंदर यह भी बताया गया है कि शब्दों के पीछे का अर्थ क्या है। क्योंकि क्या होता है जो स्कॉलर्स होते हैं ना, जो संस्कृत के स्कॉलर्स होते हैं, वो तो शब्द का अर्थ लेकर आपके सामने रख देते हैं, लेकिन शब्दार्थ को समझकर अगर कभी आप जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला। क्योंकि भगवत गीता के भी श्लोक आप देख लो, योग सूत्र की आप सूत्र देख लो, वो खाली शब्द के अर्थ को पकड़कर आप चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। वो शब्दों के पीछे की जो बातें हैं कि भाई ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में किसको पकड़कर कहां रखा गया है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो ऐसा ऐसा साबित होता है कि आपने तंत्र युक्ति को जस्टिफाई किया। तो ये बुक में भी कहीं ना कहीं हमको वो तंत्र युक्ति का सहारा लेकर जस्टिफाई करना पड़ता है कि व्हाई ही हैज मेंशन्ड बंदास एंड मुद्रास इनिशियली बिफोर डूइंग द प्राणायाम एंड ऑल। दो बंदास एंड मुद्रास आर हायर प्रैक्टिसेस देन द प्राणायाम, बट व्हाई ही इज डूइंग दैट? क्योंकि जैसे शीतलीय प्राणायाम आ गया तो काकी मुद्रा आ जाएगी, तो काकी मुद्रा आपको बताया ही नहीं है, तो यहां पर आपको बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं गैरंड मुनि जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बार बार अपने स्टूडेंट को ये गाइड करे कि इसको किस तरह से लेकर आगे जाना चाहिए। 3rd चैप्टर मुद्रा बंध का है जरूर, लेकिन इसका अभ्यास आसन के साथ साथ उतना ही होना चाहिए जो प्रिपरेशन है आगे के बंध मुद्राओं के लिए। जैसे जो हायर बंध मुद्रा है जो आपके हट्टा प्रदीपिका के अंदर लिखे गए हैं 10 बंध मुद्रा,
उसको ध्यान में रखा जाए, और 11वां भी अगर पकड़ लो तो अच्छा है। इसलिए शिव संहिता में भी 10 मुद्राओं का विश्लेषण है, उसके साथ-साथ जो 11वीं मुद्रा का विश्लेषण है वो ये योनि मुद्रा, और वो योनि मुद्रा के साथ-साथ अगर हम 11 मुद्राएँ पकड़े, तो वो 11 मुद्राओं की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, वो बाकी के मुद्राओं के साथ में, आसन के साथ में, प्राणायाम के साथ में हमारा डिटेलिंग शुरू होता है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, वो एक जो मतलब जो टीचर जो प्रैक्टिस में है, या जिसने किताबें उस तरह से पढ़ के रखी हुई हैं, वो आपको गाइड कर सकता है। अदरवाइज़ आई हैव सीन इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ आल्सो, these थिंग्स आर नॉट टेकन इंटो कंसिडरेशन। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संस्कृत का भले पूरा ज्ञान ना हो, लेकिन जो आपके टीचर है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, और वो आपको ये गाइडेंस कर दे कि भाई तुमको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद में तुम आगे जा सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट, और ये मैं जो तंत्र युक्ति जो बता रहा हूँ, हम तो उसके बारे में पढ़ाई नहीं करने वाले। लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, तो सांख्य कारिका, योग सूत्र, भगवद गीता, ये सारी चीज़ों की जो श्लोक के पीछे के जो अर्थ हैं, उसको हमको किस तरह से रिलेट करके समझना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। तो कभी मौका मिले, क्योंकि ये चीज़ें आपको तंत्र युक्ति वाली चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर बहुत मिलेंगी आपको इंटरनेट पे। इनफैक्ट यू विल गेट अ कंप्लीट बुक व्हिच इज़ रिटन डाउन, बट वो थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। जिसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है वही उसको समझ सकता है, सबके बस का काम नहीं है। बट एट द सेम टाइम इफ योर इंटरेस्ट इज़ देयर, you can certainly go ahead, and I will let you know that book, or I will share that book. That book is not downloadable, but it is available on that, वो जो हमारा इनका आईआईटी का जो लिंक है ना, जो सारी बुक्स उन्होंने अपने सबके लिए उन्होंने अवेलेबल कर दी हैं, उसके ऊपर वो बुक है। यू कैन गो थ्रू दैट। आई विल मेक श्योर दैट आई एम शेयरिंग दैट लिंक विथ यू पीपल, सो दैट जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अबाउट तंत्र युक्ति, विच आर द पेजेस, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू दैट टू। ओके, एंड दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। So nice question, and I have made you realize that. So should we go ahead now? Yeah. महाबंध मूल बंधौ महावेद समन्वितौ प्रत्यहम कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तम। That yogi is the best among the knowers of yoga who practices daily the Mahabandha, Moolabandha accompanied by महावेद। और ये इसी तरह से जो है हठ प्रतिपिका में क्या कहा गया है, अष्टधा क्रियते। आपको ये 3 प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन, यानी ये मूल बंध वाला नहीं, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये 3 प्रैक्टिस, ये 3 प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन हमसे कहा गया है कि यामे यामे दिने दिने, याम का मतलब होता है 3 आवर्स गैप। So every 3 hours you are told to practice it अष्टधा, यानी 8 times। अब वो 8 बार आप करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं अगर 8 बार नहीं होता है तो 5 बार करो, 5 बार नहीं होता है तो 3 बार करो, और मैं तो ये कहूंगा 1 बार तो करो, है। तो समवेयर वी नीड टू कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे आर इंसिस्टिंग। तो वो इंसिस्टेंस के जो रिजल्ट हैं वो आगे बताया जाता है। न मृत्युतो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रयत्नेन वेदो अयम योग पुंगवैहि। A person who is practicing in this manner, he has no fear of death, nor does the person becomes old. This Veda means this knowledge should be kept a great secret by the adepts in yoga. अब ये सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है, बट एट द सेम टाइम the aspirant of yoga should always be getting the knowledge of the same. कभी कभी आप पूछेंगे कि हर 3 घंटे में हमको ये प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, ये बात अच्छी है। 8 घंटे, 8 बार हमको कहा जा रहा है, यानी हर 3 घंटे में, तो हम सोएंगे कभी, खाएंगे कभी। ऐसा तो कहा जाता है कि खाना खाने के 4 घंटे के बाद में हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा भाई साहब, एक बार आप इस लेवल पर आ जाएं तो भूख प्यास क्या चीज है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी जो खुराक है वो प्राण शक्ति ही बन जाएगी। आप प्राणिक लेवल पे इतने हायर लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे कि ये जो मैनिपुलेटेड फॉर्म के अंदर जो अन्न पानी वगैरह जो आपको मिलता है, इसकी जरूरत ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है।
ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट। फिर कभी कभी योगी उसमें से बाहर आकर अन्न भी धारण करते हैं, वो भी बात है, वो भी बात लिखी गई है। बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस साधना for days he will be away from food and water and continue to do the practice in this manner. So this is the beauty of these practices as we understand them. Okay. Jivhadyo nadim sauchitya rasanam chalayet sada dohayenna नवनीतेन लोह यंत्रेण कर्षये। अब देखो उन्होंने हमको नभो मुद्रा, पहले सेकंड मुद्रा विच वी स्टडीड वाज नभो मुद्रा, नाउ वी आर कमिंग टू खेचरी, और वो खेचरी की तैयारी हमको बता रहे हैं क्या क्या करना है। जीवाद्यो नाड़ी संचित्य, जो आपका जो जीभ है, जो जबान है, उसके नीचे का जो फ्रेनम है, संचित्य, उसको कट करो। कितने आसानी से बोल दिया उन्होंने। रसनाम चालयेत सदा, and as you move the tongue regularly, rubbing it dohayen navanitena, navanit is the butter, तो you are rubbing it with butter। और फिर आगे क्या बोलते हैं, लोह यंत्रेण कर्षयेत। अभी हम तो नहीं जानते, लेकिन आशा मैडम किचन में रहती हैं तो वो जानती हैं कि बर्तन पकड़ने का पकड़ कौन सा होता है। तो लोह यंत्र यानी दैट काइंड ऑफ होल्डिंग विच इज देयर, एंड दैट विद दैट यू कैन होल्ड योर टंग एंड पुल इट आउट सो दैट योर टंग इज गेटिंग एलोंगेटेड। तो आप बोलेंगे अरे यार ये सब क्या है। और कुछ 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 एक बार स्टूडेंट बोलते बोलते मुझे कहा, सर वो चिमटा ना जो फ्लैट होता है उससे हम ऐसे पकड़ते हैं। मैं बोला चिमटा से अगर कभी तुम जीभ को पकड़ोगे तो फिसल जाएगा बेटा, वो चिमटे से पकड़ में नहीं आने वाला, वो पकड़ से ही पकड़ में आएगा। और एक दिन हमारी बेगम ने क्या किया, उसके उसके पास में जो है ना किचन में अभी आधुनिक पकड़ है। वो आधुनिक पकड़ कैसा है, ऊपर से 3 दांत ऐसे हैं और नीचे से 2 दांत रहते हैं, ऐसे दोनों जाके फिक्स होते हैं और वो पकड़ने का। उसने बोला क्या इससे पकड़ेंगे आप जबान को? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, हमारे बचपन में इस प्रकार के पकड़ नहीं होते थे, वो खाली 2 दांत वाले पकड़ होते थे, अप एंड डाउन, जो ऐसे राउंड शेप के होते थे, और उससे हम पकड़ेंगे। क्योंकि वो अगर 3 दांत वाले और 2 दांत वाले पकड़ेंगे तो जबान रहेगी क्यों है? उसमें ऊपर से 3 होल और नीचे से 2 होल हो जाएंगे, तो हालत खराब हो जाएगी हमारी। तो दैट इज नॉट द वन विच इज द आयन पिंसर टॉक्ड अबाउट। दिस आयन पिंसर इज हैविंग ओनली 2 होल्डिंग्स, वन इज फ्रॉम द टॉप एंड द अदर वन इज फ्रॉम द डाउन। तो आप बोलेंगे ये कितना आसान है क्या? अब जिस इंसान ने ये तय कर लिया कि मुझे शरीर को उस लेवल पे ले जाना है कि कोई पीड़ा मुझे होने वाली नहीं, दैट पर्सन ओनली कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो सेड एंड डन, थोड़ा सा मजेदार भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दीस आर द थिंग्स which are supposed to be done very sincerely and seriously. So cutting the frenum below it, move the tongue regularly and rubbing it with the butter, pull it with the iron pincer. आज यहाँ पे जो move it regularly जो कहा है ना, रसनाम चालयेत सदा, rasanam is your tongue only. So when your tongue is mobilized, so how you are mobilizing? You are taking it down towards the chin, you are taking it to the right, you are taking it to the left, you are even taking it to the tip of the nose and trying to reach it towards the bhrumadhya also. That is where the mobilization of the tongue is said to be understood. Yeah. आगे जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब जो नोट्स में लिखा हुआ है अगर आप वो पढ़ते हैं तो यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी स्टडीड इन हठ प्रदीपिका which I have just shared with you. All this is written here in that very similar manner. और ये करते हुए जो है भ्रू मध्य में आपको अपनी नजरों को रखकर जो है पूरे टंग को आपको नेसोफेरिंजियल ट्रैक में इंसर्ट करना है। देखो आगे के श्लोक में क्या कहते हैं वो, एवं नित्यम समभ्यास लंबिका दीर्घताम रजेत। जैसे जैसे आपकी जबान लंबी हो जाती है, वो क्या बोलते हैं यावत गच्छेंद्र भ्रुवोर मध्ये तदा सिद्ध्यति खेचरी। You have to make sure that the tongue has got elongated to such a level that it can touch your bhrumadhya, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि it should come out and it should touch your bhrumadhya. And if it is touching it in that way, then you understand that now you're ready for
khechari. You can insert it into your nasopharyngeal tract and go ahead. If you see the next shloka, the 23rd one, it says, Rasanam talu mule, tu shanaihi praveshayet, kapala kuhure jivha, pravishta vipritaga. Bhruvor madhye gata, drishti mudra bhavati, khechari. Slowly, inserting the tongue in the passage above the upper palate. When upturned tongue enters the cavity above the upper palate and the gaze is fixed in between the two eyebrows, Khechari mudra is attained. तो जहां आप टंग को रिवर्स करके the cavity nasopharyngeal tract from the near the soft palate, you are inserting the tongue in a reverse manner, viparitaga, then it is supposed to be taken up towards the skull. With this, he says, na cha murcha shudha trishna naivalasyam prajayate na cha rogo jara mrutyu देव देह सजायते. देव देह सजायते मतलब आपका शरीर जो है डिवाइन हो जाता है. हाउ इट इज बिकमिंग डिवाइन? बाय द प्रैक्टिस ऑफ खेचरी. वन नाइदर सफर्स फ्रॉम द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब कभी भी वो आपका जो अवेयरनेस है चैतन्य में बने रहने का, वो कभी खोता नहीं, अपने आप को छोड़ता नहीं. नॉर यू विल फील हंग्री, नाइदर थर्स्टी नॉर लेजी. फिर आगे कहते न च रोग, you will not be able to experience any kind of disease also, means diseases will be taken care of. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, टीचर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि डिजीजेस शायद आपके शरीर की तरफ हो सकती हैं, लेकिन जब आप शरीर से अलग होकर साधना में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो शरीर कर्म के भोग को भोगता रहता है और आपकी साधना के लेवल में आप उस लेवल पे प्रैक्टिस आप करते रहते हैं. लेकिन वो डिस्टिंक्शन आना भी एक प्रकार की साधना है. सो दिस इज वेयर ही सेज कि यू विल नॉट फील हंग्री, you will not feel thirsty, you will not feel lazy, you are disease free, you are away from old age and death. These are all overcome and you will find a radiant body is acquired. Rather than saying that radiant body, जैसे यहां पर लिखा गया है देव देह, that is literally making us understand कि जैसे ये व्याहुति होती है ना, हम गायत्री मंत्र में उच्चारण करते हैं भू भूवः स्वः, ऐसे ये खाली 3 व्याहृतिज नहीं है. एक्चुअल गायत्री मंत्र में पूरे 7 व्याहृतिज होते हैं. महा, जना, तपा, सत्यम, इनके भी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसमें इंक्लूडेड है. अगर आप गायत्री मंत्र का सही अगर कभी मंत्र का श्लोक अगर कभी आप देखते हैं तो आपको सिर्फ ये 3 व्याहृति नहीं, पूरी 7 व्याहृति के साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता है. और वहां पर जो है ये क्लैरिटी आ जाती है कि वो व्याहृति को एक्सपीरियंस करने की जो कुव्वत है, उसके लिए पहले आपको शरीर को वो देव देह के लेवल पर लाना होता है. यानी यू हैव टू फर्स्ट बिकम कंप्लीटली कॉन्शियस अबाउट द चैतन्य, अबाउट द चेतना शक्ति, दैट इज द कॉन्शियसनेस, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑन दिस थिंग. यानी खेचरी भले हमारे सामने ऐसा कह दिया कि फिजिकली यू कट द फ्रेनम, you elongate the tongue, you insert it into the nasopharyngeal tract and experience that state, and you get rid of all these physical expectations like hunger, laziness or water and all. ये सब कहने के लिए तो हमने कह दिया, but at the same time all these things are still physical. You will be doing this only when you gather that courage to go to that level. तो मैंने सर से पूछा, सर ये करेज कैसे आता है? तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए which I have seen with my own eyes. वो कहते हैं साबिर, आपने कभी वो तमिलनाडु के लोगों को देखा है? वो उनके प्रैक्टिस के अंदर जो है सलिया जो है गाल में घुसा देते हैं, पीछे जो कमर अपने पीठ का जो आपका मसल्स होता है उसके अंदर वो हुक लगा देते हैं और हुक लगाकर वो रथ को खींचते हैं. कभी आपने ये सब देखा है क्या? वो जलते हुए कोयले पर चलते हैं, कभी आपने ये सब देखा है? मैं बोला सर हाँ ये सब मैंने देखा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये कुछ मैजिक सा है. नहीं, कुछ मैजिक सा नहीं, क्योंकि उस समय जो है
वो जो देव देह वाली जो प्रवृत्ति है वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि आप शरीर के पीड़ाओं से बहुत दूर चले जाते हैं, एंड यू एक्सपीरियंस दैट स्टेट। मैं बोला सर हम लोग कैसे आ सकते हैं इस लेवल पे? बस आपको आने के लिए सिर्फ साधना करनी है। फिर मैंने उनको बोला वो जो लोग करते हैं वो तो नॉर्मल लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति, वो देवी देवताओं से उनको प्राप्त होती है, क्योंकि वो लेवल में आके उतना सरेंडर कर देते हैं। क्या हमारी वो ताकत है कि हम उस लेवल पे जाके सरेंडर हो जाएं ताकि कुछ फर्क ना पड़े? जबकि जब वो होश में आते हैं तो उनके पैरों पर जला हुआ दाग दिखेगा, उनके पीठ के ऊपर जख्म दिखेगा, उनके गाल में, उनके जबान पर जो वो पियर्सिंग करते हैं, वो सब जख्म दिखता है। लेकिन वो बोलते हैं वी आर ओके विथ इट, इट इज नॉट ट्रबलिंग अस। तो हाउ, व्हाट इज दैट? तो साइकोलॉजिकली भी इसको स्टडी किया गया है, और वो कहते हैं कि ये अलग ही प्रकार का जो है जुनून होता है। और उन्होंने वो जो है ना, वो इंटेंसिटी, वो जुनून को बता दिया कि जब आप वो जुनून में आ जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, और आप वो करके निकल जाते हैं। तो पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, यानी आपका जो कॉन्शियस लेवल है, जैसे हमारे उपनिषदों में बताया गया कि यू आर हैविंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एट द मेंटल लेवल, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एट द फिजिकल लेवल, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एट द सटल लेवल। वही हम डिस्कस कर रहे थे आज सुबह भी, सत्व रजतम वात पित्त कफ, एंड एट द सेम टाइम यू कैन से दैट जागृत स्वप्न सुषुप्ति एंड तुरिया। जब हमारे मेंटल और फिजिकल जो कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स हैं उसको क्रॉस करके जब हम आगे चले जाते हैं, तो यू गो बियॉन्ड द बॉडी एंड यू गेट along with those kind of kriyas or actions which will give you that feeling or motivate others or inspire others to get up in that। तो योगिक प्रैक्टिसेस में खेचरी मुद्रा भी एक ऐसी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपने ऐसा किसी को देखा है करते हुए? तो मैं बोलता हूँ ऐसा कोई देखा नहीं। हाँ, मेरे एक वर्कशॉप के अंदर हमारी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मंजीत कौर। वो साइंस से आई हमारे पास और हमको बोली सर मैं एक बात बोलूं? मैं बोला बोलो। ये जो आप जितना भी खिचड़ी का नॉलेज दे रहे थे मस्ती मस्ती में, मेरी टंग इतनी ऊपर जाती है कि मैं उसको लेके जाके ऊपर तक ले जा सकती हूँ। तो मैं सरप्राइज हो गया, मैं बोला अरे बताओ करके। उसने टंग निकाला, नीचे भी ले गई और ऊपर भी ले गई। आई हैड शेयर्ड दिस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट हट्टा प्रदीपिका अर्लियर। तो वो निकाल के बताई, तो मैं बोला फिर तुमने कभी खेचरी किया है? सर अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब करके देखूंगी। तो उसने करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे क्या बोलती है ना, सर व्हेनेवर आई ट्राई टू टेक माय टंग थ्रू दैट nasopharyngeal tract, I feel suffocated, I feel breathless, I cannot do। अब देखो, that means you at the pranic level are existing only at the physical level now, you have not gone beyond that, though your tongue is long, maybe पिछले जन्म का कर्म होगा, वो फल होगा वो, कि आपका टंग इतना लंबा है, शायद पिछले जन्म में वो खेचड़ी करती होगी। आई टोल्ड हर दैट। तो वो बोली अभी मैं क्या करूं? मैं बोला कुछ करना नहीं है, साधना करो, अगेन क्वालिफाई फॉर द सेम। एटलीस्ट यू रियलाइज दिस टुडे, व्हेन यू रियलाइज दिस टुडे नाउ यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जो हम रेगुलर करते हैं ना, आसन प्राणायाम रेगुलर करो, आपके अंदर ही वो डेवलपमेंट होगा एंड यू विल लीड योरसेल्फ। यू डोंट नीड टीचर्स लाइक मी हु आर ऑर्डिनरी। I told her that I am an ordinary teacher, maybe I will not be able to guide you, but when the time comes the teacher himself or herself will come in front of you to guide you, so don't worry and just keep practicing। तो ऐसा भी है, all these things are there in front and around us, so we need to learn to properly distinct between the two and guide our students accordingly। okay, तो ये हमारा हो जाता है। और आगे देखो वो क्या बोलते हैं, नमक मिर्ची लगाने के लिए बोलते हैं जख्म पर। मिर्ची का शब्द नहीं है, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इट नाउ। न अग्नि न दह्यते गात्रम न शोषयेति मारुतः न देहम क्लेदयत क्लेदयन त्यापो दशेन्न च भूजंगम। The body which is practicing or is involved in khechri cannot be burnt by fire. It cannot be dried up by the wind. It cannot be made wet by water, nor is that body going to get affected by a serpent biting you. So that is because of the khechri. अब आगे देखो, लावण्यम च भवेद गात्रे
समाधिर्जायते ध्रुवम कपाल कपाल वस्त्र संयोगे रसनाम rasam apnuyat. Limbs of the body become beautiful and samadhi soon supervenes the tongue touching the opening into the skull tastes various juices. And we have seen this in Hatha Pratipika also, where we are told that different kind of taste you will come across. And that is emphasized in the next shloka. Nana rasa samudbhuta bhutam anandam cha dine dine adau cha lavanam sharam ततस्ति तिक्त कषायकम. तो ये टेस्ट वो बताते जा रहे हैं और आगे का श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं. नवनीत घृतम क्षीरम दधीत क्रम मधुनि दधी तक्र मधुनि च द्राक्षारसम च पीयूषम जायते रसन उदकम. Day by day, the person who is practicing Khechari Mudra will experience the pleasurable sensations arising from these various juices. Among the juices secreted, the tongue has the first taste of salt, then bitter, then astringent, then the taste of butter, ghee, curds, buttermilk, honey, grape juice, and lastly of nectar. अब ये मैं as a very, I first laughed when all this I heard from my teacher's mouth. तो उन्होंने पूछा क्यों हंस रहे हो साबिर? मैं बोला सर ये सब टेस्ट तो वैसे भी हम करते हैं. अगर कभी आप अपने नाक से निकलता हुआ जो सेम्बुड़ है, जो हम लोग हमारी लैंग्वेज में कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं, और द फ्लेम विच इज कमिंग आउट, इफ यू टेस्ट दैट इट इज वेरी सिमिलर टू इट. तो उन्होंने मुझे पूछा तुम टेस्ट करके देखा है क्या? नहीं, बचपन में 1-2 बार किया था, लेकिन अभी नहीं करते. लेकिन कभी कभी सर हम नाक में जो फ्लेम रहता है ना, उसको ऐसे करके ऐसे खींचकर थूक देते हैं, तो जब मुंह में आता है तो उसका टेस्ट तो पता चलता ही है. तो उन्होंने कहा बराबर है. फिर मैंने कहा कि फिर ये टेस्ट में वो टेस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा, वो तो सेम हो गया. बोले नहीं. उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा तरीके से समझाया और कहा कि जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, जब तुम स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो क्या होता है पता है? आपको जो लिम्बिक सिस्टम जो मटेरियल इमोशन से हटकर स्पिरिचुअल इमोशंस के अंदर जुड़ जाता है, जहां पर सरेंडर की भावना आ जाती है, जहां पर अल्टीमेट पीस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, देन ऑल दिस हार्मोन्स आर रिलीज्ड. मैं बोला हाँ, वो तो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा है. दैट इज द फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ द हार्मोन्स. व्हेन द होल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी इज रिलैक्स्ड, देन सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन. तो उन्होंने बोला कि ये सब हार्मोन्स के टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं. And just imagine, because of the practice of these mudras, all these hormones are released at proper intervals. The release of these hormones itself is an indication that there is lot of balance in the body, that there is lot of equanimity, equilibrium in the body, which is leading you to experience all these things. और अगर कभी आप उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो भले टेस्ट से आप एक्सपीरियंस ना करो, लेकिन वो स्टेट ऑफ माइंड की वजह से आप काम एंड क्वाइट एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हो. आई सेड यस. दोस हार्मोन्स आर रिलीज्ड, इज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड. आई सेड यस. But here you don't need any kind of experience. If you are doing Khechari, you are already going to experience it with your own tongue itself. And that is the time you have to understand that spiritually you are becoming more and more aptly qualified for that experience of Khechari. तो देखो टीचरों का भी समझाने का तरीका कैसा है. भले वो हॉर्मोन्स हैं नहीं है, ये क्वेश्चन हम उठा सकते हैं, अलग अगला क्वेश्चन हम रख सकते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि when this kind of hormones are released in the body, the person becomes completely tranquilized, he becomes completely satiated. तो वो जो satiation का जो state है, that itself is a state of bliss. So why can't we make our experiences of the subtle changes in the body to go to that level and do it? So this is how the Khechari and this release of such kind of nectar and the various tastes as mentioned here can be compared to that of our day-to-day experience of our meditation or maybe pranayam that we feel. Okay, so this is how it is to be taken. Okay, आगे वो कहते हैं ना भी मूले वसेत सूर्य स्तालु मूले च चंद्रमा अमृतम ग्रसते सूर्यास्ततो मृत्यु वशो नरः.
Surya, which dwells at the root of the navel, and Chandra at the root of the palate, the man succumbs to the death because the Surya swallows the ambrosia. अब एक जनरल इंसान में क्या होता है, वो बचपन, जवानी, बुढ़ापे को एक्सपीरियंस करते हुए एक दिन मृत्यु को एक्सपीरियंस करता है। तो उसका एक्सपीरियंस ये सब चीजों का है, सब स्टेजेस का है। लेकिन वो क्या कहते हैं, ये स्टेजेस तुम एक्सपीरियंस क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा जो चंद्र है, उसका जो अमृत है, वो सूर्य के अंदर गिरकर भस्म हो रहा है। ना भी मूले वसेत सूर्य, तालु मूले च चंद्रमा, ये उन्होंने लोकेशन बता दिए। फिर आगे क्या कहते हैं, अमृतम ग्रसते सूर्यास्ततो मृत्यु वशो न रहा। जब ये नेक्टार आपके सूर्य के अंदर गिर जाता है, अब हम आपको बता रहे हैं, ये लेक्चर कर रहे हैं, ये सब बातें बता रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। तो आप सुन भी रहे हो और मैं कह भी रहा हूं, लेकिन हमारा ये कार्य चालू है। यहां से नेक्टार रिलीज होकर अपने सूर्य मंडल में गिरकर वो भस्म हो रहा है। लेकिन एक योगी जो खेचरी में होगा, क्या उसे ये सब एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी जबान से ही जो ऊपर से आने वाला अमृत है, उसी में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं पर उसको रोक देता है, वहीं पर उसको स्थिर कर देता है। सो व्हेन द ambrosia is becoming stagnant at that level, how it will come down? तो अभी जैसे मेरे जैसे अनाड़ी स्टूडेंट ने फिर से पूछा, अरे सर जी, क्या ऐसा कोई चंद्र का स्त्राव हकीकत में होता है? तो समझना बहुत जरूरी है, द एक्सपीरियंस ऑफ अल्टीमेट सात्विकता, जहां पर रजस और तमस शायद हो सकता है 0.01 और 0.01 के लेवल पे आ जाए। Such a person can experience that. You have to raise yourself from tamasikta and rajasikta to sattva, because when you come to sattva, only then you are getting that rutumbara prajnana. योग सूत्र में भी लिखा हुआ है, you will be coming and experiencing that rutumbara prajna only when you come to that level. तो we have to raise our level to even experience this, और वो खेचरी करने के बाद ही ये सब एक्सपीरियंस होता है। आगे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वं च योजयेत सूर्यम चंद्रम च अपि अधः आनयेत विपरीत करी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। अब वो विपरीत करने के बारे में हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां हमारा ये पूरा जो है खेचरी मुद्रा का एक्सप्लेनेशन आ गया। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स इन योर माइंड रिलेटेड टू खेचरी मुद्रा, यू कैन आस्क, so that before going ahead and explaining viparit karni, we can sort out certain clarity if there is any in your mind. So, Shabir bhai, it is more or less a spiritual, more spiritual than the physical. It sounds like that. Unless you become spiritually inclined, sorry sir, unless you become Right. spiritually inclined, khechari physical practice is not possible. Yes, that is. जब तक आप वो लेवल तक क्वालिफाई नहीं करते, ये होगा ही नहीं। Yes, yes, yes. In fact, the body level must exhaust by that time. Yes. If there is no rise, of course, but this the negative impact that when the body experience on this should totally be in the Dagdha Bija state. I think then we are. It's more इलाज जैसे हम लोग जैसे प्रवचन सुनते हैं. It looks like that should fit into our software. Very true. So, Very true. so it is very good. हाँ, तो ये और तो चलिए टावर लेवल कम से कम हम लोग को याद होना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए थ्रू आउट। प्रैक्टिस तो हम नहीं कर सकते, हाउ मच वी मेक एन एफर्ट, लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बिल्कुल हमारे सॉफ्टवेयर से मैच कर जाना चाहिए कि है कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, and then we can do 0.1% or maybe less or something like that at our level. Very true. और एक बात है, और एक बात है कि हमने पूछा कि सर अगर कभी हम समझो खेचरी हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं, तो क्या हम समाधि से वंचित रह जाएंगे? तो सर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। There are different techniques which are telling us. In the chapter of Samadhi, that is the 7th chapter itself, we have been told there are 6 ways to attain Samadhi.
and one is that of Khechari, another is of Shambhavi, another is of Yoni Mudra, another is of Brahmari. तो ऐसे अलग 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 6 टाइप के जो है आपके सामने बताए गए, तो आपसे जो पॉसिबल हो सकता है वो करके आप वो पाथ को अचीव कर लीजिए, वो लेवल को अचीव कर लीजिए। तो ये टेंशन में भी हमको नहीं रहना है कि आई विल नेवर क्वालिफाई फॉर दिस खेचरी एंड आई विल नेवर बी एबल टू डू दैट। तो यू कम आउट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड जस्ट अंडरस्टैंड फॉर विच काइंड ऑफ टेक्निक आई क्वालिफाई। अगर खेचरी मेरे लिए नहीं है तो मेरे लिए क्या है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा है। So this is basically for the I don't know tantric traditions. It is purely tantric. It is purely tantric. Yes. In fact, अगर कभी आप दूसरे टेक्स्ट में देखेंगे तो जो खेचरी करने वाला बंदा होता है उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं कि आपको शरीर में जो है वो गोबर की गीली राख, मतलब गोबर का उपली जो जलाने के बाद में जो राख होती है उसको गीला करके पूरे शरीर में उसका लेप लगाना, और वो आपका वस्त्र होना चाहिए। और वो वस्त्र होने के बाद में यहाँ तक कि और भी कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपको शरीर के ऊपर अपने भ्रू मध्य में ऐसे अप्लाई करना होता है, और अप्लाई वगैरह करके फिर उसके बाद में आप वो साधना, मतलब ये टोटली जो है ना, कोई भी देखेगा तो ऐसा बोलेगा कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो भी ब्लैक मैजिक चल रहा है। बट एट द सेम टाइम इट इज गिवन इन तंत्र इन दैट वे। तो जो बड़े बड़े हठयोगी हैं वो इस लेवल पे जाके साधना करते ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं? करते हैं सर। वो तो वही इवन डेड बॉडी का भस्म, यू नो, that is also used. They use that also. In fact, yes. इसमें तो तंत्र में तो in fact if you go to this crematoriums of these places, these people are in search of dead body. Yes. In fact, the Aghoris have, they have particular smashan dedicated to them. Yes. And they live there. They will not come in front of the common people, but the moment the dead body is burnt, they will do their own rituals. Correct. These Aghoris, and of course the Tantric people, when I visited Kumbha or the Magh, that is bath, the holy bath of, then nobody can enter the river unless they take bath. It is the first. The police controls that. They will come first. 4 o'clock, 3 o'clock. The first bath will be by them, and then of course rest of the bath. It's like that. Anyways, we will go ahead and understand Viparita Karani now. Okay. I will have some sip of water. Yes, friends. ऊर्ध्वं च योजयेत् सूर्यं चंद्रं च अपि अधः आनयेत् विपरीतकरी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता. This is the process of Viparitakarani, where the position of the Surya is raised up and the Chandra is carried down, is called as Viparitakarani Mudra. Now it is said Sarvatantreshu Gopita. So among all the techniques, even this technique is supposed to be kept as a great secret. अब आप लोग जानते हैं कि हम विपरीत करनी मुद्रा कैसे करते हैं। सर को नीचे रखते हैं, कमर के पास अपने हिप्स को हम पीछे से नीचे से पकड़ते हैं, पोस्टीरियर्स को, और हमारे पैरों को 90 डिग्री में या थोड़ा सा एंगल में रखकर हम विपरीत करनी करते हैं। तो जब हम इस तरह से पोजीशन में आ जाते हैं तो जो सूर्य का लेवल होता है वो ऊपर है, क्योंकि सर नीचे रखा हुआ है, नाभि ऊपर है, तो द चंद्र कम्स डाउन एंड द सूर्य इज अप. But let me tell you the conceptual understanding. There is a very important role of the 5 elements in the working of the body, because body is also made up of the 5 elements. Yeah.
तो when these 5 elements are comprising of the body, so which are the earth in our body and what is the akash in our body, that is to be understood. So the skull is taken as the state of akash, and below the navel region it is taken as the state of prithvi. फिर उसके ऊपर जो है अग्नि है, वायु है, हाँ? और इसके ऊपर जो है आप आकाश बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर बनी हुई है। अब ये जो लोकेशन है, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं, नॉट द फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ विपरीत करनी। जैसे एक मैग्नेट अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद में अपना कार्य भी चेंज करता रहता है, उसी तरह से अर्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैग्नेट। द मोमेंट यू चेंज योर पोजीशन, द फंक्शनिंग इन द बॉडी ऑल्सो चेंजेस। अब आप बोलेंगे सर लेकिन उसमें तो वीनस ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ये सब फिजिकल है। These are all, maybe they will be leading you to the physical benefits. Varicose veins का problem खत्म हो जाएगा, the dislocated body organs in the pelvis or in the abdomen, they will be relocated or reposed in your body. All these benefits will be always there. There will be rise of the Agni Tattva in the body, that will also be there. But इन सब के लिए कारण ये भी है कि the conceptual changes at the energy level is also taking place because of the positioning of the body as per the elemental distribution in the body. अब यहां पर सूर्य और चंद्र की बात की गई, तो इसमें conceptual understanding क्या है कि पहले ये जो चंद्र हमारे स्कल में स्थित है, उसका जो अमृत है, हम जब जैसे कि अभी बैठे हुए हैं तो वो नीचे गिरकर भस्म हो रहा है। लेकिन अभी आपने क्या किया, अब आप सर को नीचे रखकर सूर्य को ऊपर कर दिए, तो ग्रेविटी के वजह से आपका जो जो नेक्टार है वो नीचे ही रह जाता है, और सूर्य की जो अग्नि है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। इट इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स अप ओनली। सो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट रीच टुवर्ड्स द स्कल डाउन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। तो ना तो अमृत ऊपर की तरफ जा रहा है और ना सूर्य नीचे की तरफ आ रहा है। सूर्य ऊपर की तरफ हो गया और अमृत नीचे की तरफ हो गया। जैसे ये दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन आ जाता है, इट इज सेड दैट वी आर ओवरकमिंग द फिजिकल चेंजेस। मतलब जो ओल्ड एज है, यहां तक कि हमने हठ प्रतिपिका में भी पढ़ा कि बालों का सफेद होना या फिर चेहरे पर झुर्रियां आना, ये सब खत्म हो जाता है, ये सब नहीं होता है। और अग्नि इतनी प्रबल हो जाती है शरीर की कि अगर आप कॉमन मैन हैं, अगर आपने सही प्रकार का भोजन नहीं लिया, तो शायद हो सकता है कि आपके शरीर की अग्नि, जो आज हम सुबह पढ़ रहे थे कि एक जो दोष है अगर वो बढ़ जाता है, तो अगर पित्त शरीर में अगर बढ़ गया तो उसकी जो बीमारियां वो बन जाएंगी। लेकिन यहां पर तो ये बीमारी का सवाल नहीं उठता। ये अग्नि जो है इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि देयर आर चांसेस, नॉट ओनली इट इज ईटिंग अवे द फैट इन द बॉडी, बट इट विल ऑल्सो टेक अवे और ईट योर फ्लैश एंड बोन्स ऑल्सो। ये भी आप नोट कर लीजिए। यस, अगर आप वो लेवल तक क्वालिफाई नहीं होते तो। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राणिक लेवल है, आपका जो चैनल्स हैं, वो चैनल्स अभी तक वो तैयारी पे नहीं आए हैं कि भाई ये जो हीट डेवलप हो गया उसको दैट इज ट्रांसेंडेड टुवर्ड्स द कुंडलिनी शक्ति एंड इट इज मेकिंग इट फ्री टू लेट इट ट्रैवल थ्रू द सुषुम्ना। अगर आपका वो लेवल नहीं आया है और आप उतने लंबे समय तक विपरीत करनी कर रहे हैं, तो उसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दिस इंडिकेशन हैज बीन ऑलरेडी गिवन इन हठ प्रतिपिका। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड हियर। वो क्या कहते हैं, भूमौ शीर, हाँ बोलिए जी। Sabir bhai, at some places this viparit karni is taken along with the inversion of spinal asanas. Viparit karni, they confine to that. And see, if we go, what you are saying is here in this shloka itself. All the inversion asanas. अभी मैंने जो विपरीत करने का जो डिस्क्रिप्शन किया, वो तो हाथ हम अपने बटक्स के पास रखकर होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने शीर्षासन भी कर लिया, वो भी विपरीत करनी है। अगर आपने सर्वांगासन किया तो वो भी विपरीत करनी है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस श्लोका। व्हाट ही सेज, भूमौ शीरश्च संस्थाप्य
कर युग्मम समाहितः ऊर्ध्वपाद स्थिरो भूत्वा विपरीत करी मता। तो जहां पर सर नीचे और पैर ऊपर है उसी को हम विपरीत करनी कहते हैं। तो यानी सर्वांगासन और शीर्षासन विपरीत करनी हो ही गया। So that is how we are understanding it. So composing yourself, placing the head and the hands on the ground and raising up the legs and thus remain steady, this is called as विपरीत करनी। हाँ सुनील भाई बोलिए। नहीं, सो मेरे को एक ख्याल आया, एक मैंने सीक्वेंस देखा था गुरुजी अयंगार द्वारा रिलीज किया गया था 10-12 साल पहले। तो वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, वो इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देयर वाज अ प्रीपोंडरेंस ऑफ इन्वर्जन प्रैक्टिसेस। तो शायद यही प्रिंसिपल है कि भाई जो सूर्य है वो ऊपर हो जाता है, चंद्र नीचे हो जाता है, तो वो अब्सॉर्ब नहीं होता है, तो उससे वो शक्ति और अग्नि बढ़ती है, तो उससे फिर वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, फिर आपका। Yes, you are right. You are absolutely right. But let me add one thing. अगर हम ऐसा इंसान जिसने कभी योग का अभ्यास न किया हो, अब वो कोविड से पीड़ित है, अब उसकी इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है और आप उसको बोलेंगे विपरीत करने करो। Now that is wrong. Because he has not done the preparatory practices. He has not done Sukshma Vyayam. He has not done all the preparations to qualify to the level of सर्वांगासन, शीर्षासन और विपरीत करनी। और फिर ऐसे इंसान को हम करेंगे तो वो कोविड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम्स भी वो इनवाइट कर लेंगे। तो what you are saying to raise our immunity level, it is perfectly proper and right. But who qualifies to do that? That is important. Other question that arises in my mind is कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भाई सूर्य को ऊपर रखो और चंद्र को, मतलब एटलीस्ट सूर्य को आप चंद्र की तरफ ना आने दें या चंद्र को सूर्य की तरफ ना आने दें, तो वो गॉबल अप नहीं करेगा। तो जब हम लेटे होते हैं तो दोनों समतल पे होते हैं, तब वो मूवमेंट किस तरह होता है? वो जैसे मैंने बताया ना कि पंच महाभूत का अपना अपना काम करने का तरीका है। तो जैसे शवासन की स्थिति में आप आते हैं, शववद भूमौ जैसे कहा है, तो योर अग्नि, योर व्हाट यू से द चंद्र, द नेक्टार, they are at their own places and the whole body is at rest. So at the physical level, even the rest is given to all this. और ये आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा हुआ है कि लेटने के बाद में धातु साम्य अवस्था आपको प्राप्त होती है। अब धातु साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ? ही इज टॉकिंग एट द फिजिकल लेवल। धातु साम्य का मतलब हो गया सप्त धातु, त्रिदोषास, ये सबको जो है ना धातु ही कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। और जैसे ही आप लेटकर रेस्ट करते हैं तो बॉडी इज गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू बिकम टू दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस लेवल। सो अ पर्सन बिकम्स हेल्दी, उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है। जैसे हमने शवासन में पढ़ा भी कि चित्त विश्रांति कारकम, श्रांति हरम, श्रांति यानी थकान को दूर करने वाला, चित्त विश्रांति यानी चित्त को शांत करने वाला। अब वो चित्त का शांत कैसे हो रहा है? समवेयर वी आर गिविंग रेस्ट टू द होल बॉडी, द फिजियोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ इग्नाइटिंग द हीट टू कैरी आउट द डाइजेशन is also at rest. It is not that it is completely at rest, but it is also somewhat rest. तो पेट में तो कुछ डाइजेस्ट करने के लिए है भी नहीं, तो वो सुकून से है। इसलिए तो कहते हैं ना, सोने से पहले खाना आपका डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, तब आपकी नींद अच्छी होती है। ये भी एक कारण है उसके लिए कि खाना खाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। So this is one of the reason. And now here it is being told at this level. Now coming to the conceptual level. So when all this is at the same plane, they will hardly bother to come closer to each other. Because when we talk about Chandra, it is not moving by itself. It moves only by the pull of gravity. So when the gravity at the head level is at ease, it remains stabilized, it remains sthira. That leads to overcoming the exertion, or you can say the chitta vishranti takes place. अग्नि भी देखो अपने लेवल पे रहती है,
वो आगे बढ़ती नहीं है, या फिर यहां वहां नहीं जाती, वो फिजिकल लेवल पे ही अपना कार्य करने की कोशिश करती है। जहां पर चंद्र गिरकर भस्म ना हो, वो 100% अवॉइड किया जाता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अवॉइड होता ही है, थोड़े बहुत लेवल पे तो होता ही है। जब वो लेवल पर वो होता है तो ऑब्वियसली शवासन करने के बाद में आपको अच्छा लगता है। In fact, many people who do Shirishasana, who do Sarvangasana, they say that this is a very dynamic practice. But let me tell you one thing. This may be a dynamic practice if you practice with the intention of dynamism. बैलेंसिंग को ध्यान में रखकर, वो फिजिकली इन्वॉल्व होकर। लेकिन एक बार फिजिकली इन्वॉल्वमेंट से अगर आप स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट की तरफ आ जाते हैं, तो it is said that Shirishasana itself lead to the number of heartbeats getting reduced, the blood pressure getting reduced, जबकि आपका सर नीचे और पैर ऊपर है, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर, और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, रिसर्च से प्रूव हुआ है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। इफ यू प्रैक्टिस दैट शीर्षासन फॉर अ लॉन्गर पीरियड विथ ईज, जैसे बोलते हैं ना प्रयत्न शैथिल्यम, वो प्रयत्न शैथिल्यम की अवस्था में अगर आप शीर्षासन करें, तो you will find that it is more or less extracting the values of Shavasana in Shirishasana. तो कभी कभी गुरुजी हमको यही बात बोलते हैं कि जो शीर्षासन को हम आसनों का राजा ऐसे कहते हैं ना, शवासन भी कुछ दूर नहीं है। इवन शवासन इज द किंग ऑफ ऑल द आसन्स, बिकॉज शवासन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आसन फॉर ए कॉमन मैन। ही विल नॉट ले रेस्ट, उसके लिए उतना आसानी से रेस्ट करना इतना आसान नहीं है। He will be again under the impact of many more other things going on in his mind. So we need to take care of. So that way we can connect the conceptual and the physical changes in our body here. और भी एक बात बोलता हूं, मैं आपको ऐड करता हूं, आप ऐड पूछेंगे जरूर। ऐसा देखा गया है कि शवासन के प्रैक्टिस के बाद में ब्लड के अंदर ये जो हार्मोन्स हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, उसकी मात्रा बढ़ी हुई पाई गई है। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो सिर्फ लेटे रहे, शरीर को शांत किया, मन को शांत किया, तो बॉडी को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ रेवलेशन, एंड दैट रिवीलिंग इटसेल्फ इज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जो शवासन का जो एहसास है ना, वो कई कई टेक्स्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप चक्र धारणा या चक्र ध्यान जो करते हैं, पहले आप शवासन में करो, पहले आप शवासन में करो, शवासन में करते करते फिर अपने स्पाइन को परपेंडिकुलर पोजीशन में रखकर करना शुरू करो। इट इज लाइक प्रैक्टिसिंग इन द प्रिपरेटरी पोज ऑफ शवासन एंड देन सिटिंग इरेक्ट विथ योर बैक एंड डूइंग इट। Makes a lot of sense. हाँ सर, हाँ Yes, lot of sense. एक जस्ट क्योंकि अपन ने ये टेक्स्ट में एड्रेस नहीं किया, बट आई एम क्यूरियस, विपरीत करनी, सर्वांगासन और शीर्षासन के अंदर अगर हम एक जक्स्टापोज करें, तो व्हाट कम्स आउट एज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू? in fact there are research papers on these three postures. अच्छा, हाँ, अच्छा, खाली हमको सर्च करना है, गूगल स्कॉलर पे आप जाइए एंड जस्ट टाइप सर्वांगासन शीर्षासन विपरीत करनी एज विपरीत करनी, इतना आप खाली टाइप कर दीजिए और देखिए कितने सारे आपको जो है सामने मिल जाएंगे आपको। जी जी जी। इट इज रियली वंडरफुल लर्निंग, क्योंकि कैसा है आज के डेट में जो है ना, स्टूडेंट्स जब तक आप उनके सामने रिसर्च की चीजें ना रखो तो वो मानते भी नहीं है। अगर हम ये किताब पढ़ के उनको सुना देना तो उनको लगता है क्या बकवास है ये सब, ऐसे लगता है। तो कुछ रिसर्च ऐसे हैं जो हकीकत में ये ऐसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रेफ्यूट करते हैं और ये बताते हैं कि ये सिर्फ कंसेप्चुअली नहीं है, लेकिन ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और वहीं पर हमको समझ में आ जाता है कि हाउ इट इज इफेक्टिव। सो दिस इज द ब्यूटी। अब ये श्लोक पढ़ के हम आज रुक जाते हैं, विराम करेंगे यहाँ पर। मुद्राम च साधयेत नित्यम चराम मृत्युम च नाशयेत स सिद्धः सर्वलोकेषु प्रलय अपि न सिद्धति। Regular practice of Viparit Karni Mudra will help us to get rid of old age and death. One who does that is respected in all the worlds, as the Siddha does not perish even at
pralaya. So this is the benefit of practicing what we call as Viparita Karni. Next class, we will start with the 33rd shloka, where we will be coming across the understanding of the other mudras. That will be more interesting, friends, as we go ahead next. Okay, so let me mark it. Yeah. So, Any other questions in your mind? Yeah. ये अब जैसे इवन फॉर एग्जांपल ये मुद्रा का भी हम कह रहे हैं कि गेट्स रिड ऑफ ओल्ड एज डेथ, मतलब इसके काफी लाइक ऑल द अदर्स के बड़े बेनिफिट हैं. See, whenever you talk of old age, na, we have to understand it on the scientific terms. और scientific terms के अंदर हम उसको कैसे समझते हैं कि catabolism is brought under control and anabolism is improvised. The more anabolism is improvised, the more younger you are going to be, and the destructions of the unwanted cell is taking place. अब आप देखो जो हेल्दी मिडिल एज वाला जवान इंसान होता है, उसका एनाबॉलिज्म हाई राइज पर रहता है, और कैटाबॉलिज्म इज ऑलवेज स्लो. But when you take note of a person who is 35 plus or 45 plus, you will see that their anabolism and catabolism have come to that same level, and this can be studied scientifically very well. But when you go ahead beyond 60 plus, you will see catabolism on the higher side and anabolism on the lower side. तो ऐसे इंसान को ऐसा खुराक खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और उसका एनाबॉलिज्म रेज हो, लेकिन ये अच्छी तरह से पहुंचता नहीं लोगों तक, और वो उस बात को ध्यान में नहीं रखते. लेकिन यहां पर ये क्लैरिटी आ जाती है कि अगर आप ये साधना करते हैं तो आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और एनाबॉलिज्म इंप्रोवाइज्ड हो जाएगा, जिसकी बदौलत जो है आपका ओल्ड एज डिले होगा. और जहां ओल्ड एज डिले होता है वो अपनी जगह पर है, आपकी ब्रीदिंग जो है ना वो ज्यादा स्पेस आउट हो जाती है. और जैसी ब्रीदिंग आपकी ज्यादा स्पेस आउट हो जाएगी, जैसे देखो एक नन्हा शिशु 1 मिनट में लगभग 22 से 25 सांसें ले लेता है, उसी तरह से बुढ़ापे में भी जो एजेड लोग हैं वो ज्यादा सांसें लेते हैं 1 मिनट में. तो जब वो ज्यादा सांसें लेते हैं तो जाहिर बात है कि उनका आयु कम होने वाला है. लेकिन जैसे ही ये लेवल पर आ जाते हैं तो सांसें 1 मिनट में कम हो जाती हैं, एंड यू विल फाइंड दैट द दीर्घ आयु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. सो व्हाट वी से, द डेथ इज डिलेड, उसको और लंबा ढकेल दिया आपने. दैट इज व्हाट हाउ दिस टर्म्स, as you know, you are going to overcome old age and death, is to be understood. So I'll ask in our discussion, because it's already 12. Yes, we will wind up. Yeah. So sitting erect with your back, keeping your shoulders proper, keeping your chin parallel to the floor, becoming settled and relaxed. Observe your breaths. Inhale. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gently open your eyes. Yes. Thank you very much, friends. We can go ahead with our discussions. हाँ, so पहले if I may be permitted, I just want to ask कि जैसे खेचरी का भी हमने देखा कि there are a lot of benefits, but a lot of preparation is required. Whereas Viparit Karni, it appears is much easier and with much fewer pre-qualifications. Is that true? या
विपरीत करनी भी जेन्युइनली करने के लिए बहुत साधना पहले करना जरूरी है? नहीं, देखो इसलिए जो है ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा वालों ने क्या किया, उन्होंने 2 प्रैक्टिसेस रखी, एक को विपरीत करनी आसन बना दिया और दूसरे को जो है विपरीत करनी मुद्रा बना दिया। और वो अपने एक्सप्लेनेशन में ये बात को बताते हैं कि विपरीत करनी आसन will be more physical oriented, whereas mudra will be more conceptual oriented. वो एक चीज। और जहां आपने खेचरी मुद्रा की बात की, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे घेरंड संहिता में तो ये लिखा हुआ ही है कि स्टार्टिंग की महामुद्रा है और उसके बाद में आता है नभो मुद्रा। तो वी ऑल नो दैट वी कैन नॉट प्रैक्टिस खेचरी, बट वी कैन प्रैक्टिस नभो मुद्रा। So why not we practice Nabho Mudra so that we are preparing for Khechari for in the future? तो नभो मुद्रा का तो अभ्यास हम सब कर सकते हैं। इवन अ न्यू स्टूडेंट हु इज कमिंग टू क्लास आल्सो कैन प्रैक्टिस टू हिज और हर लेवल। जी। So that is how you can go ahead with the preparation. Right. Got it. Thank you. Yeah. हाँ। तो ये नभो मुद्रा क्या होता है? It is just taking the tongue reverse and making it trying to reach with the tip of the tongue towards the uvula. It is if you see this chapter na madam, in the second practice itself the Nabho Mudra has been given. But ऐसे नहीं है, as householders this is all very difficult, so something like Gita का कर्म योग and you know doing अभी ये हठ योग is like these हठ योग and not asanas, not the simple asanas, but this khechari and mahamudra and all is a very difficult proposition. Don't you think so? It is true, they are difficult, but when we say they are difficult for the common man. But when you are qualifying yourself as a hatha yogi, when you are trying to attain that siddha state, then maybe the common things that a common man is involved in is supposed to be shed off, na? क्योंकि हमको कहा है कि hatha yogi should be doing sadhana, remaining away from the society, remaining away from the crowded people, remaining away from home, living in solace, in seclusion, in a solitary place. And in that solitary place, the way you have learned it from your teacher, you're supposed to practice. And in that practice of how should be your hut, what kind of food you're eating, so all these qualities have been mentioned. So obviously ये जो practices हैं वो common man के लिए उतना qualify होती ही नहीं. But once a person is qualifying himself to the higher levels, he can take up them. Correct. Yeah. That is how that doesn't mean that we should not do it. तो हम जो हमारे लेवल की जो प्रैक्टिसेस है उतनी हम रेगुलरली करते रहेंगे. और जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं अब समय आ गया कि हमको आगे वाली भी प्रैक्टिस करनी, तो किसने रोका है? करो. बराबर. Graduation. हाँ. Graduation. And there were yes, and there were people. In fact, sometimes I feel Yogendra ji might be into such practices, because if you see his face, if you see his body, if you see his way of interaction with people during that time, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ खाली आसन प्राणायाम या फिर इतना ही करते होंगे. Yeah, because these practices are supposed to be kept secret. तो भी हमको पता नहीं कि क्या. Exactly. So when we go beyond commonality, the secrecy comes in. So that is where this practice. इसमें लिखा हुआ भी तो है ये सारे practices हमको secret रखने. तो जब secret रखने हैं तो common man के लिए तो ये है ही ऐसा. Correct. Yeah. Interesting. Very interesting actually. लेकिन पहले हमारा प्रारब्ध फिटे तब सोचेंगे इसके बारे में, जैसे लगता है. सही है. Also, मेरे ख्याल में ये जो अलग अलग मार्ग हैं, of which हठ योग is one, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं एक मार्ग से दूसरे मार्ग की जो उपलब्धियां हैं वो तो आने ही लगती हैं. Yeah. माने फर्ज अपन ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं
तो आई थिंक साबिर भाई यू कैन क्वालिफाई दैट whether I'm right or wrong, बट अगर जब सपोज हम ध्यान के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एक अगर ढंग से हम कर रहे हैं तो शायद ध्यान में भी ये जो कहा जाता है कि भाई ये वेरियस टेस्ट या वेरियस लाइट्स से सब अपने को देखने को मिलता है, तो दिस इज वन मोड ऑफ प्रोग्रेस, but I think any other mode that you adopt properly, I think all the benefits should accrue. Yeah. See, when we were learning Bhagavad Gita, if you go to the philosophy of Hatha Yoga, as mentioned in Siddha Siddhanta Paddhati, Gorakshanath ji himself mentions what you said just now. He is completely talking Vedanta, the language of Bhagavad Gita. He says, अगर आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बंद मुद्रा कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वहां पर वो वननेस के लिए सरेंडर नहीं है, इट इज ऑल फ्यूटाइल. तो हम आसन भी कर रहे हैं, तो अनंत समापत्ति भ्याम, जो अनंत की जो बात की गई है ना, वी हैव टू कनेक्ट दैट अनंत विद ब्रह्मन. वो सरेंडरिंग आना ही चाहिए. प्राणायाम में भी कहा गया ततः शीयते प्रकाशावरणम, जो इग्नोरेंस का आवरण है वो प्राणायाम से ही निकलेगा. प्रत्याहार से भी कहा गया कि ये प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे तब ना कहीं जाके आपके इंद्रियों का दहन होगा, इंद्रिय के विषयों का दहन होगा. तत्र वश्यते इंद्रियाणाम, ऐसे कहा उन्होंने. तो कहीं ना कहीं इसलिए योग सूत्र में देखो, कोई पर्टिकुलर आसन या कोई पर्टिकुलर प्राणायाम के टेक्निक पर उन्होंने गए ही नहीं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से हमको ये एम्फसाइज करवाना है कि योगा इज टू बी प्रैक्टिस्ड एट मेंटल लेवल, एट द हायर लेवल. इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फिजिकल. आज हम फिजिकल होके रुक गए हैं, ये अलग चीज है, बट वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट. उन्होंने जिस तरह से सेकेंड चैप्टर में हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, यानी प्रॉब्लम, द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, द रेमेडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रेमेडी, ये चार बातों का जो वर्णन उन्होंने सेकेंड चैप्टर में जो किया है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो हमको ये क्लैरिटी आ जाती है कि हाउ द कर्मा थियरी इज इंपॉर्टेंट, नॉट द प्रैक्टिकल वन विच वी आर इनटू. हम ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि हम शरीर की तरफ ज्यादा सजग हो जाएं, शरीर की तरफ हम ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएं, और जो बाहर के जो एटमॉस्फेयर है या फिर हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो हैबिट्स हैं, वो हमको ट्रबल ना करें. उसके लिए हठ योग इज द बेस्ट वे टू रेस्ट्रिक्ट देम एंड बिकम मोर एंड मोर, you can say, focused or concentrated, and that is where the mental yoga starts. अगर हठ योग भी है तो हठ योग की भी पॉलिसी यही बताती है जो हमारे दूसरे ग्रंथों में वर्णन किया गया है. इट सेज अबाउट द सेम सरेंडरिंग. अभी यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे ही हम ध्यान के चैप्टर में चले जाएंगे, और दैट इज द सिक्स्थ चैप्टर एंड द सेवेंथ चैप्टर, यू विल से फिर इसमें और भगवत गीता के एक्सप्लेनेशन में फर्क क्या है? ये तो सब सेम ही है. फिर कोई पूछता है फिर वो जो पहले के जो 5 चैप्टर है वो ऐसे क्यों बताए गए? क्योंकि भगवत गीता के वो कंसेप्ट को समझने के लिए तो बाकी की चीजों पे जिस तरह से प्रैक्टिकली आपको नियंत्रण लाना है, इसलिए वो पहले के 5 चैप्टर्स हैं. नहीं तो कहाँ, बच्चे को जब चलना सिखाना होता है तो हाथ तो पकड़ना ही होता है, उसको बोलना पड़ता है कि पैर ऐसे रखो. तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर्स हैं वो उसी तरह से हमको गाइड करते हैं कि भाई उस लेवल पे जाना है तो पहले आप इस तरह से बढ़ो. This is how the whole concept of Hatha Yoga is to be understood. नहीं तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा, जैसे दास बोध जो स्वामी रामदास के प्रवचन का लिखा गया टेक्स्ट है, कल्याण स्वामी ने लिखा, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि ये सारे उपनिषद, ये सारे गीता, ये सब वेस्ट है. सिर्फ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि दुनियादारी से हटकर पूरी तरह से सरेंडर होना सीखो. अगर तुम सरेंडर नहीं हो सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते.
अब ऐसे से जब वो बोलते हैं तो हमको समझने की, नहीं तो कोई गुस्से वाला इंसान होगा तो वो क्या बोलेगा, अरे ऐसे कैसे बोल दिया उसने, हटियोग को ऐसे कैसे बता दिया उसने, हैं? ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो, ऐसा कहेगा, इसका मतलब उनको अभी इग्नोरेंस है। तो वी नीड टू रेज आवर लेवल ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड इन विच कंटेक्स्ट। तो वो कंटेक्स्ट को अगर ध्यान में रखकर हम समझने की कोशिश करेंगे, थिंग्स विल बिकम बेटर क्लियर। और वही चीज सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी वैसे ही लिखी हुई है, बाकायदा वो। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, वही मैं कह रहा था कि सो द साधना हैज टू बी मल्टी इंजन अफेयर। जैसे कि पहले भी अपन ने चर्चा की, माधवदास जी वैसे भक्ति योगी थे, लेकिन देखिए हठयोग का कितना जबरदस्त ज्ञान था। तो समवेयर, जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में बिल्कुल उचित कहा कि हठयोग इज अ स्टेपिंग स्टोन टू द अदर फॉर्म्स, वेदर ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। तो शायद इस वजह से महत्व है हठयोग की अभ्यास का। यस, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम फिजिकल में अटक जाते हैं, हमको उसके I बियॉन्ड think जाना है। you can Yes, look at it in different ways. जैसे रमन महर्षि थे या श्री राम कृष्ण थे, they were so much at the mental level that physical body में क्या हो रहा है, they were just so it depends. अभी माधवदास जी was in a different level. अभी it just depends. ये भी अभी कर्म के ऊपर है, your destiny. सरेंडर की बात सही है। When you are totally surrendered, then शरीर को क्या हो रहा है, it doesn't matter. वेरी ट्रू। Yeah. महेंद्र सर, एनी शेयरिंग फ्रॉम योर साइड? 5 minutes. Yeah. In fact, जब ये सेशन स्टार्ट होने वाला था, मैं चाहता ही था सेशन हो ही नहीं आज। कभी कभी कुछ ऐसा फूड मिलता है ना कि अच्छा हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं। तो टुडेज टॉपिक वाज लाइक दैट कि अब उसके फर्दर वी वांटेड दैट द होल डे दैट शुड कंटिन्यू। तो उसमें कुछ हम डिस्कशन नहीं चाहते थे, एंड समहाउ इट हेल्प। हमारे लाइट चली गई थी कुछ देर के लिए। इट हैपेंड नेचुरली कि गई लाइट और इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया। फिर मैं इमीडिएटली सर्च करता रहा, किसी जैसे आई वैसे फिर लॉग ऑन किया सेकंड टाइम। तो गेटिंग एनग्रॉस इनटू द सब्जेक्ट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जब तक आदमी इन कॉन्सोनेंस ऑफ द सिचुएशन न हो जाए, आई थिंक बड़ा लोअर स्टेज रहता है हम लोगों का। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, अंधे थे सूरदास जी। तो मंदिर में जब जाते थे सुबह, तो पुजारी कहते थे, अरे तुमने आज हरे रंग का कपड़ा पहना रखा है इसको। अब वो पुजारी सरप्राइज करता था कि ये तो आंख नहीं है, ये नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन बता देते। नेक्स्ट डे सूरदास जी जब मंदिर पे गए, तो पुजारी से कहते, अरे भगवान को आज तुमने पीला कपड़ा पहना रखा है। तो ये कई दिन तक रूटीन चलता रहा। एक दिन पुजारी ने कहा ना, आज हम इनका टेस्ट करते हैं, सूरदास जी का। तो उस दिन भगवान को कोई कपड़े नहीं पहनाए, और भगवान को पूरा फ्लावर से ढक दिया, पूरे में पुष्प। तो जब सूरदास जी एंटर करते हुए बोले, अरे आज तो मेरे भगवान गरीब हो गए, इनके पास कपड़ा नहीं, फूल पहना दिया। तो आई एम सॉरी, म्यूट तो नहीं था? नहीं सुनाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा, सुनाई दे रहा है जी। तो जब लास्ट से जब उनकी टेस्टिंग की बारी आई, तो पुजारी ने उस दिन कपड़े नहीं पहना, सारा फ्लावर से ढक दिया। तो जब सूरदास एंटर करते हैं मंदिर पे, तो वो कहते हैं, आज हमारे भगवान बहुत गरीब हो गए, इनके पास कपड़ा नहीं है, आज इनको फूल पहनना पड़ा। तो ये सब चीजें आ तो जाती हैं, बट
बट इसके लिए एज यू सी दैट वन पॉइंटेडनेस और वन पॉइंटेड फिर जीरो पे आता है, देन वी रीच समवेयर। शेयरिंग बहुत अच्छी थी आपकी, और शबीर भाई बहुत अच्छा सेशन था। आई थिंक मैं निकाल रहा था उनकी बुक, शायद उसमें इसमें भी नहीं दिया हुआ, ये वहाँ की है बिहार स्कूल वालों की। जिस तरह से आज किया आपने, इसमें भी इतना टेक्स्ट नहीं है, वॉट एवर यू सेड। गुड बुक, नो डाउट, रेफरल है, अच्छा है, लेकिन योर लेक्चर वाज गुड टुडे। Thank you very much. Very nice, very nice, very nice.